Hello students, this is the second part of the hormonal regulation of water and electrolyte balance chapter. लास्ट स्लाइड को रिकैप कर लेते हैं. ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा पे हमने छोड़ा था, उसी से स्टार्ट करते हैं. ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा इट रेंजेस फ्रॉम 285 to 295 millimoles per kg. Sodium and its anions, they are the largest contributors, which is measured by osmometer. It can be computed from the concentration millimole per liter of sodium, potassium, urea and glucose as follows. 2 into sodium ions plus 2 into potassium ions plus urea plus glucose. The factor 2 is used for sodium and potassium ions to account for the associated anion concentration. Since in the plasma sodium is predominant, plasma osmolality is 2 into plasma sodium. Okay. Above calculation hold good if plasma concentration of the glucose and urea are in normal range. In the case of severe hypoproteinemia or lipemia present, calculation will not be valid. Osmolality of ECF or ICF. Movement of water across the biological membrane depends on the osmotic pressure. ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है. Osmotic pressure, it is the difference between intracellular fluid and extracellular fluid. So, in healthy state, the osmotic pressure of ECF due to sodium ions is equal to the osmotic pressure of ICF, which is predominantly due to potassium ions. There is no net passage of water molecules in and out of the cells due to osmotic equilibrium. Regulation of sodium and water balance. Major regulatory factors कौन कौन से हैं? Hormones, that is aldosterone, ADH, renin and angiotensin system. Aldosterone, it is secreted from the mineralocorticoid zona glomerulosa of adrenal cortex. क्या करता है? ये regulate करता है sodium potassium ion exchange and sodium hydrogen ion exchange at the renal tubules. And net effect क्या होता है कि सोडियम बॉडी में रिटेन हो जाता है. Antidiuretic hormone, that is ADH. When plasma osmolality increases due to sodium, osmoreceptors of hypothalamus are stimulated. उससे क्या होगा? ADH secretion होगा. वो क्या रिजल्ट करेगा? Increase water reabsorption by the renal tubules. This is how ADH controls the reabsorption of the water. Then let's come to renin and angiotensin system. When ECF volume falls, renal plasma flow decreases, जिससे क्या होगा? Release of renin by juxtaglomerular cells. Factors which stimulate the renin release and दूसरे वो inhibit करते हैं. तो स्टिमुलेट करते हैं वो कौन से फैक्टर है? डिक्रीज्ड बीपी, सॉल्ट डिप्लीशन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. इनहिबिट कौन करता है रेनिल रिलीज को?
increased BP, salt intake, prostaglandin inhibitors or angiotensin 2. This is a very beautiful diagram which you should also draw when you answer the question on the water hormonal control of water electrolyte balance. Now let's start from here. जैसे ही बीपी ड्रॉप होता है किडनी से रेनिन सिक्रीट होगा, इधर से लिवर से एंजियोटेंसिनोजन ऑलरेडी होता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे रिएक्ट करेगा, उससे एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा और ACE लंग से आएगा जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा. अब ये एंजियोटेंसिन 2 3 जगह काम करेगा, हाइपोथैलेमस पे, हार्ट पे और एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी पे. हाइपोथैलेमस में ये थर्स्ट क्रिएट करेगा और ADH सिक्रीट करेगा और हार्ट में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करेगा. अब थर्स्ट एंड ADH के बाद इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम होगा, जिससे BP बढ़ जाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से भी BP बढ़ जाएगा और एल्डोस्टेरोन से सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा, उससे भी BP बढ़ जाएगा और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कंट्रोल होगा. It is a very beautiful diagram, very simplified I have made it, so use it in your answers. Now let's talk about the clinical significance. ACE, angiotensin converting enzyme, is a glycoprotein. ACE inhibitors is useful in treating edema, chronic congestive cardiac failure, peptide analog of angiotensin 2, that is saralasin, and antagonist of the converting enzyme, that is captopril, are useful in treating renin dependent hypertensions. Disturbance in fluid and electrolyte balance. Tonicity, abnormalities in fluid and electrolyte balance. Hypertonic, effective osmolality is increased due to dehydration of cells. Hypotonic, effective osmolality is decreased, causes brain cells to swell, which results in headache, vomiting and medullary herniation. Now let's discuss what abnormality happens and उसके biochemical features क्या है और osmolality उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. Expansion of ECF, isotonic retention of sodium water. So osmolality is normal, hypotonic is relative water excess, osmolality is decreased. Hypertonic में क्या होगा? Relative sodium excess and it is osmolality is decreased. Contraction of ECF. Isotonic में loss of sodium and water, osmolality remains normal. Hypotonic में relative loss of sodium, there is a decreased osmolality. Hypertonic, which is relative loss of water, then there is an increase in osmolality. Now let's talk about clinical condition. First is dehydration. 3 facts about dehydration. Dehydration occurs when the body loses too much of fluid. शरीर से बहुत ज़्यादा पानी का जब लॉस हो जाता है तो वो डिहाइड्रेशन होता है. Fluid can be lost through illness, sweating और exercise. कैसे हो सकता है? किसी बीमारी की वजह से, बहुत ज़्यादा पसीने आने की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से. और इससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगेंगे.
साइंस ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन, ड्राई माउथ एंड स्टिकी सलाइवा। हमारा मुंह ड्राई होगा, सलाइवा चिपकने लगेगा, यूरिन बहुत कम हो जाएगा, गहरा पीला हो जाएगा, अजीब सा बिहेवियर हो जाएगा और एकदम से बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी। साइन ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन, क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, माउथ ड्राई हो जाएगा, आइज़ में आंसू नहीं होंगे, यूरिनेशन डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन बिल्कुल डैम्प अंबर और ब्राउन हो जाएगा, लाइट हेडेडनेस हो जाएगी, इरिटेबल और रेस्टलेस होगा बंदा, आर्म्स और लेग्स आर कूल टू टच, बहुत ठंडे हो जाएंगे, एंड रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी और मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगेंगे। ये फोटो देखो, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। साइन ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन, ऑल्टर्ड बिहेवियर, बिल्कुल अजीब सा व्यवहार हो जाएगा, फेंटनेस, बिल्कुल आदमी बेहोश हो जाएगा और उस लेटने से भी, सोने से भी उसको आराम नहीं मिलेगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, बहुत तेज उसकी ब्रीदिंग हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगा और उसकी पल्स भी वीक हो जाएगी और बहुत रैपिड हो जाएगी, स्किन बिल्कुल ठंडी, क्लैमी और हॉट और ड्राई भी हो सकती है, और नो यूरिनेशन फॉर लिटिल और 12 और मोर आवर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आदमी बेहोश हो जाएगा। There is one simple reason we should not ignore it. Severe dehydration decreases the fluids in the body. Fluids help blood to travel to organs. Without this, body can go into shock. हमें डिहाइड्रेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वही हमारे ब्लड को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, और जब ये नहीं होगा तो बॉडी शॉक में चली जाएगी, ट्रॉमा में चली जाएगी। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर और आईवी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यूजुअली 5% ग्लूकोज, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट वाटर बना के घर में हम पीते ही हैं, शिकंजी, चीनी और पानी मिला के ही हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें थोड़ा बहुत नमक भी हम डाल देते हैं सोडियम इनटेक के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी आइदर ओरल और आईवी। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है तो ओरल देते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो फिर सेलाइन लगता है, कैन्यूला लग के सेलाइन लगता है, और आईवी बॉडी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। मॉनिटरिंग द वाटर इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस ऑफ द बॉडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको ट्रीटमेंट में भी मॉनिटर किया जाता है। ओवर हाइड्रेशन, अब अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर पानी भी बहुत ज़्यादा पी लिया है तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओवर हाइड्रेशन कैन लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। कोई भी चीज़ जब शरीर में ज़्यादा चली जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली हो जाती है। दिस ऑकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी बिकम्स टू डाइल्यूटेड। उससे क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। Hyponatremia is a condition in which sodium levels become dangerously low. This is the main concern of overhydration, that is hyponatremia. Causes of overhydration: by making your body hold on to more fluid, these include congestive heart failure, that is CHF, liver disease, kidney problem, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, non-steroidal anti-inflammatory drugs,
एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर या फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, वो टॉक्सिक बन जाता है, और वो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी के अंदर CHF, लिवर डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ करती हैं। Now let's talk about the symptoms of overhydration. Common symptoms include nausea and vomiting or headache. Changes in mental state such as confusion or disorientation. Symptoms क्या क्या हो सकते हैं? नाउशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक्स भी हो सकते हैं, आदमी डिसओरिएंटेड हो सकता है, कंफ्यूज स्टेट में दिखता है। Untreated over dehydration can lead to dangerously low levels of sodium in your blood. This can cause more severe symptoms such as, जब हमारी बॉडी ओवरहाइड्रेटेड रहती है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो सोडियम कंसंट्रेशन है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो उससे क्या होगा? मसल वीकनेस होती है, स्पैज़म आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, आदमी अनकॉन्शियस होता है और फाइनली कोमा में चला जाता है। सो सी हाउ इम्पॉर्टेंट सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन योर बॉडी, जिसके सही नहीं होने से मसल वीकनेस होती है, स्पैज़म्स आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, अनकॉन्शियस, और फाइनली अ पर्सन गोज इनटू कोमा। Now how this overhydration is treated? Cutting back on your fluid intake, okay? Fluid intake कम करें. Taking diuretics to increase the amount of urine you produce. Diuretics देते हैं दवाइयों के फॉर्म में जिससे ज़्यादा यूरिन हो और बॉडी से वाटर लॉस हो, फ्लूइड लॉस हो. Treating the condition that has caused the overhydration. और ये ओवरहाइड्रेशन क्यों हुआ है? किसी बीमारी की वजह से हुआ है, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ, उसको हम ट्रीट करते हैं. स्टॉपिंग एनी मेडिकेशंस विच कॉजिंग द प्रॉब्लम. किसी मेडिकेशन से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ट्रीट करते हैं. रिप्लेसिंग सोडियम इन सीवियर केसेस. सोडियम को भी रिप्लेस किया जाता है सीवियर केसेस में. थैंक यू सो मच.